سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا شکر. بالکل شاہ جی آج ہم نے آپ سے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنے ہیں کہ زندگی گزارنی کیسی چاہیے. زندگی ہمیں گزار جاتے ہیں یا ہم زندگی کو گزارتے ہیں؟ اچھا دیکھو, زندگی ہے کیا, یہ زندگی کا شعور کیا ہے, زندگی یہ جب پتہ لگتا ہے نا بڑا وقت گزر چکا ہوتا ہے. میں ایک جملے کے ساتھ نا اسے آغاز کروں گا گفتگو کو. واصف علی واصف صاحب کا ایک بڑا مشہور کوٹیشن ان کا جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے. بالکل ایسے پتہ لگتا ہے نا کہ زندگی کیا تھی, زندگی اتنی ہوتی نہیں, بچی نہیں ہوتی. خوش بختی یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے وزڈم سے یا وقت پہ سمجھ کے زندگی گزاریں. پہلی بات تو ریشنل موسٹ ڈیفینیشن جو مجھے لائف کی ملی, زندگی پیدائش اور موت کے درمیان وقت کا نام. وقت کا نام جو وقت اللہ نے آپ کو دیا نا, یہ زندگی ہے. اگر آپ اس دیے ہوئے وقت کو اللہ کا انعام سمجھتے ہوئے ایک مؤثر کوشش کر کے گزارتے ہیں تو وہ تو زندگی ہے. لیکن اگر آپ کو شعور ہی نہیں ہے, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس کو میں گزار رہا ہوں وہ کیا ہے, اور آپ وقت کو بھی ضائع کر رہے ہیں, ریسورس کو بھی ضائع کر رہے ہیں, انرجیز کو بھی ضائع کر رہے ہیں, اور پھر اچانک کسی دن پتہ لگا زندگی کیا ہے, تو پتہ لگا زندگی تو وقت ہاتھ سے نکل گیا. اچھا شاہ جی, میری ہم نام فضا ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. جی فضا بات کیجئے گا. ہیلو, لائن ڈراپ ہو گئی ہے ان سے. اچھا شاہ جی زندگی کی بات ہو رہی تھی. اچھا زندگی کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ملا کے ایک انسان کی زندگی کمپلیٹ ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلی جو چیز ہے نا, ہمیں ماننا چاہیے زندگی ایک سیریس چیز ہے. یہ کوئی نان سیریس چیز نہیں ہے, اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے, اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے, وہ لوگ جو زندگی کو مذاق لیتے ہیں نا, ان کا خود مذاق بن جاتا ہے. بالکل ایسے. یہ زندگی اتنی ایک قیمتی چیز ہے کہ اس کو اگر آپ نے ضائع کیا تو آپ کو اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ پچھتاوے کی شکل میں ہوگا. اور میرے مطابق زندگی میں کاش سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے کہ کاش میں پہلے سمجھ جاتا. اور بڑی دنیا آپ کو ملے گی بڑھاپے میں, کسی وقت میں وہ کاش کاش کرتے پھر رہے ہیں کہ کاش ہمیں کو بتا دیتا. یہ کاش کی سزا جو ہے وہ بہت بھاری ہوتی ہے, میں خود بہت بار بھگتی ہے. فضا ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے. فضا بات کیجئے گا. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے پوچھنا ہے کہ جب انسان اپنی ساری زندگی بھی اپنے اصولوں کے مطابق گزارتا ہے, اصول وہی ہوتے ہیں جو آپ کے پیرنٹس آپ کو بتاتے ہیں, تو لیکن پھر بھی آپ اپنا, وہ کہتے ہیں نا کہ لڑکیاں اپنے سسرال میں ہمیشہ اپنا سر نیچا کر کے گزارتی ہیں ہر جگہ, کہ آپ نے کچھ بھی ہو جائے آپ نے ان کی باتوں کو درگزر کرنا ہے, لیکن ایک حد ہوتی ہے. لیکن جب یہ حد سے گزر جائے تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا جو فضا کی بات ہے نا, فضا کی بات میں ایک درد سا ہے. اللہ تعالیٰ سلامتی اور زندگی دے ہماری ان بہنوں کو جن کے یہ چیلنج ہے. پہلی بات تو واضح کر دوں کہ زندگی کے جو اصول اور ضابطے ملتے ہیں, انہوں نے بالکل صحیح کہا, یہ ہماری پیدائش سے پہلے کے بنے ہوتے ہیں. یہ دین کی شکل میں بھی ہوتے ہیں, یہ بڑوں کی نصیحتوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں, یہ تجربات کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات واضح کروں, بڑے اصول اور ضابطے اور بہت سی ترجیحات آپ وقت کے ساتھ ان کو طے کرتے ہیں. مثال لیجئے, اگر آپ نے وقت کے ساتھ طے کیا ہے کہ میں نے زندگی گزارنی کیسے ہے, تو وہ وقت کے ساتھ ہی آئے گا. لیکن جہاں تک سوال کا یہ شعبہ رہ گیا کہ اگر آپ کے ان لاز میں آپ کی برداشت ختم ہوگی تو کیا کریں, تو تھوڑی سی بغاوت کریں. ہم نے بھی سر سٹنے کی عادت ڈالی ہوتی ہے, زبان ہم جو ان سے وہ بند کر لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہے, چھوٹا ظالم بڑا ظالم بن جاتا ہے, اور ہم چھوٹے سے مظلوم سے بہت بڑے مظلوم بن جاتے ہیں. علی افضل گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سر السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی افضل صاحب کیا حال ہے؟ علی افضل صاحب کچھ سوال ہے آپ کا؟ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ معرفت پہ کچھ بتائیں, معرفت پہ کچھ روشنی ڈالیں. ٹھیک, بہت شکریہ. کیا سوال ہے؟ آواز تھوڑی سی. معرفت پہ کوئی روشنی ڈالے. معرفت کیا ہے؟ معرفت یہ ساری جو باتیں کر رہے ہیں معرفت وہ تمام چیزیں جو آپ نے اگنور کی ہوتی ہیں, جو آپ کی ترجیح میں شامل نہیں ہوتی, اور آپ اس زندگی میں سب کچھ تلاش کرتے ہیں, اللہ کی رضا تلاش نہیں کرتے. اس سے بڑی معرفت کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنی شعوری زندگی میں اللہ کی معرفت کو تلاش کریں. تو زندگی میں ایسے کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے یا جن کے ہونے سے زندگی مکمل ہوتی ہے؟ اچھا دیکھو, میں نے جو اس پہ پڑھا یا میری جو ریسرچ ہے, میرے مطابق زندگی میں 7 درخت ضرور لگانے چاہیے. اچھا 7 درخت کا ورڈ ہی میں نے کیوں یوز کیا, ٹری کا ورڈ. جو ٹری ہوتا ہے نا وہ 2 چیزیں دیتا ہے, ایک تو وہ چھاؤں دیتا ہے, دوسرا وہ پھل دیتا ہے. یعنی ہمیں 2
چیزیں پھل اور چھاؤں اگر چاہیے تو 7 درخت ضرور لگائیں. سب سے پہلا جو درخت ہے وہ ہے کیریئر کا. آپ کو کوئی پیشہ کوئی شعبہ ضرور اپنانا چاہیے اور اس کا انتخاب کرنا چاہیے کہ آپ نے اگر ایک معیاری زندگی گزارنی ہے تو فیلڈ کون سی ہے جس کے ساتھ آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے. یاد رکھیے زندگی آدھی زندگی ہم اپنے پروفیشن کو دیتے ہیں. بالکل, یہ تو پہلا درخت ہو گیا. اور شاہدرہ سے علیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آواز ان کی کم آ رہی, کیا سوال ہے جی آپ کا؟ شاہ جی سوال یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ہم لوگوں کو اپنے معاشرے میں جو اپنے بہن بھائی یا معاشرے کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ رکھنا چاہیے تاکہ ہم دین میں بھی آسانی ہمارے بھی ہو جائے, آخرت میں بھی ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم لوگوں کی عزت ہو. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ انسان زندگی گزارتے ہوئے اپنوں سے کیسا رویہ اور برتاؤ رکھے. دیکھیے ہمارے پاس بہترین جو مثال ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. آپ نے معاف کیا, آپ نے درگزر کیا, آپ نے محبت کی, آپ نے ساتھ چلایا, آپ دیکھیں آپ کی ذات گرامی سراپا رحمت تھی. آپ 2 جہانوں کے لیے اور کائنات کے لیے رحمت بن شاہ جی یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ہر سوال کا, اپنی زندگی کی ہر مشکل کا آسان سا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے مل سکتا ہے. نہ ہم پڑھتے ہیں, نہ ہم قرآن مجید کھول کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, اور بس مفت کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا ان میں پڑے ہوتے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ ہمیں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اگر ہم باقاعدہ محنت کر کے سیرت کا مطالعہ کر لیں تو ہماری زندگی کے سینکڑوں سوالوں کے جواب اس سیرت میں ہمیں مل جاتے ہیں. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ کی ذات گرامی جون سی ہے, آپ جیسا تاجر کوئی نہیں ہے. ہمیں پتہ لگے گا آپ کی ذات گرامی جون سی ہے, آپ جیسا جنگجو کوئی نہیں, آپ جیسا فادر نہیں ہے, آپ جیسا دوست نہیں ہے, آپ جیسا رفیق نہیں ہے. تو آپ ہر روپ میں, ہر رنگ میں آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو جب تک ہم سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ زندگی گزارنی کیسے. تو پھر زندگی گزارنے کے لیے رشتوں پہ بات کریں گے کہ کون سے ایسے رشتے ہیں جن کو بہت ہی عزیز کر لینا چاہیے کہ ہماری زندگی آسانی سے گزرے. اچھا یہ ہمارا دوسرا درخت ہے دراصل. دوسرا ٹری جون سا ہے وہ ہے آپ کے رشتوں کا درخت. اچھا رشتوں کے درخت میں سب سے امپورٹنٹ یاد رکھیے گا آپ کی اپنی ذاتی فیملی آ جاتی ہے. وہ لوگ جن کی اپنی کوئی فیملی لائف نہیں ہوتی یا اچھی فیملی لائف نہیں ہوتی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھی پروفیشنل لائف بھی نہیں گزار سکتے. آپ کی اچھی فیملی لائف کا مطلب فضا یہ ہے کہ آپ کی کتنی انسیکیورٹیز ختم ہو گئی. آپ ہائی جیک نہیں ہو سکتے, آپ کو کوئی اٹریکٹ نہیں کر سکتا, آپ کو کوئی خراب نہیں کر سکتا. آپ کا اپنی ذات پہ اور اپنے گھر پہ اتنا یقین ہے کہ آپ ٹریپ نہیں ہوتے, آپ جو ان سے نقصان نہیں آپ کو کر سکتا. ایسا ہی کہ مطلب کوئی ایسا ہے, کوئی ایسے افراد ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کی بیک بون بن کے. اور ہمارے ساتھ محمد نواز صاحب ہیں, لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. جی نواز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاسم علی شاہ صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا شکر جی. سر ویسے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا, اور یہ نہیں کہ یہ بہت آپ اچھا پروگرام کر رہے ہیں تو اس لیے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. بہت مہربانی. آپ کا کوئی سوال ہے نواز صاحب؟ ہاں ویسے ملاقات ہی ہوئی تھی ہماری الائڈ مارکیٹ سے حسنین علی شاہ, حسنین میاں. ٹھیک, بہت شکریہ نواز صاحب, بہت شکریہ. اور تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب کے فالوورز بہت زیادہ ہیں, لیکن وہی لوگ فون کریں, زیادہ سے زیادہ ہم فون لیں جن کا کوئی کویسچن ہے اور فوراً کویسچن پر آ جائیں. اچھا سر, تھرڈ ٹری دوسرے کی تھوڑی سی وضاحت میری رہے گی. دیکھو جو دوسرا درخت ہے نا, دوسرے درخت میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے, بڑے لوگ مزے کی بات انہوں نے درخت لگائے نہیں ہوتا. اچھا یہ کیسے ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا شادی نہیں کی ہوتی, شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, لیکن یہ درخت نہ چھاؤں دے رہا ہوتا ہے نہ پھل دے رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا؟ یہ جو پہلا درخت ہے نا کیریئر کا, پیسے کمانے کا, کئی لوگوں کی ترجیح میں یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ خبط ہوتا ہے پیسے کمانے کا, اپنی جاب کا, اپنے کام کا, اور اس کے نتیجے میں فیملی لائف جو ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. سو یہ بیلنس یہ ہے کہ آپ کو اگر پہلا درخت آپ نے لگایا ہے تو آپ کو دوسرا درخت بھی لگانا چاہیے, یعنی آپ کی جو ریلیشن شپ فیملی لائف ہے وہ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. اور منیبہ راولپنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں منیبہ بات کر رہی ہوں. سر میں 21 ہوں تو گریجویشن کر رہی ہوں. سر جب آپ کو دھوکہ ملتا ہے, مطلب کس ایج میں آپ سمجھ سکتے ہیں کس ٹائپ کا؟ یہ آواز کم آ رہی ہے. کس طرح دوبارہ سے اپنی لائف
ठीक है मुनीबा, बहुत शुक्रिया, आपका क्वेश्चन नोट कर लिया है। धोखा मिलता है तो किस तरह से आप अपनी लाइफ में दोबारा से नॉर्मल हो सकते हैं? देखिए ये एक बड़ा पुराना जुमला है, गर्दाब, आपने इतनी गर्दाब बार भी कोट किया मैंने। एक बड़ा पुराना जुमला है कि अक्ल जो उनसी बादाम खाने से नहीं आती, धक्के खाने से आती है। तो आप जब धक्के खाते हैं आपकी जिंदगी में शुरू, अच्छा बिलखसूस जिंदगी के शुरू के अयाम के धोखे ना बड़े जबरदस्त होते हैं। हाँ। ये आपको पुख्ता करते समझ आ हैं, जाती ये है। मिच्योर कर देते हैं, ये आपको क्रुक कर देते हैं, ये तेज कर देते हैं, ये आप में एक डेप्थ पैदा कर देते हैं। आपको ना ट्रिक्स की समझ आती है कि लोग आपके साथ ट्रिक करते क्या है। वो पंजाबी कहते ने दिखाया दर्दी मारी दर्दी समथिंग ना। तो आपको समझ आती है कि लोग किस किस रवैये और किस किस अंदाज से ट्रिक कर सकते हैं, ये मैच्योर कर देते हैं। मैच्योर कर देते हैं। और वैसे भी जो which I assume कि जब आपको धोखा या कुछ इस तरह से मिलता है तो आपको पहचान होती है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, आपको पता चलता है कि कौन सा इंसान अच्छा है कौन सा इंसान बुरा है। आरिफा फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, बाज़ दफ़ा इंसान खुद ठीक होता है लेकिन आगे से रिस्पॉन्स नहीं अच्छा मिलता। अगर आप किसी के साथ अच्छा रहते हो फिर उसके बदले में भी आपको यही मिलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सवाल मैं समझ गया हूँ। अच्छा जो आरिफा का सवाल है वो ये है कि हमारा रवैया अच्छा है और सामने वाले का रवैया अच्छा नहीं होता तो क्या करें। देखिए आपको अच्छा रवैया रखने का हुक्म है, इसको अल्लाह ने पसंद फरमाया है। बदले के तौर पे इंसान से तवक्का करना तो वैसे ही सिरे से गलत हो गया, पहली बात। दूसरी बात ये याद रखिए, अगर आप बेलोस हो कि आपका रवैया अच्छा है और आपकी कोई डिमांड नहीं है, आपकी कोई कंडीशन नहीं है, तो यकीन रखिएगा अल्लाह ने अजर देना और उसका रवैया सामने वाले का बदल जरूर जाएगा। इंशाल्लाह जरूर बदल जाएगा। और दाऊद लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी ये ऐसे है, हेलो जी जी दाऊद साहब सवाल करें। सर ये ऐसे है कि आगे ये जो मैम आपके साथ बात कर रही थी कि जिंदगी का ये कुरान पाक का, मैं थोड़ी सी इसमें आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। आपके प्रोग्राम के तवसल से और आपके लोग बहुत ज्यादा फैन हैं इसी हवाले से कि हमने बचपन में कुरान पढ़ लिया, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे दादाज ने पढ़ा है, लेकिन हमारे मुआशरे में हमें इसको समझाने वाले बहुत कम लोग हैं। बिल्कुल ठीक है दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया, समझ आ गया आपके सवाल की कि वही बात। दाऊद साहब के पॉइंट बड़ा वैलिड है और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में भी कहता हूं कि देखें ये बिल्कुल बाबरकत किताब है, इसे मोहब्बत के लायक किताब, अदब के लायक है, लेकिन इसे समझना भी चाहिए अल्लाह का मैसेज क्या है। ये इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसको समझे बगैर तो जिंदगी सिर्फ अरबी पढ़ लेते हैं सवाब की खातिर, नमाज में, रोजे में या खुलों पे पढ़ ली, तर्जुमा भी पढ़ना चाहिए। तर्जुमा नहीं पता कि अंदर आखिर लिखा क्या है। अच्छा शाह जी, थर्ड ट्री, पहला करियर, दूसरा आपकी फैमिली, थर्ड। अच्छा थर्ड मोस्ट जो इंपॉर्टेंट ट्री है वो आपकी हेल्थ है। अच्छा। अगर आपकी सेहत नहीं अच्छी और आपने अगर अपनी सेहत के हवाले से कॉन्शियसली को वर्किंग नहीं की, आपने इस पौधे को लगाया नहीं है, आपको कई लोग मिलेंगे और वो आप उनकी उम्र देखेंगे, वो 30, 35, 40 की उम्र है, उनका वजन देखेंगे तो वो लगेगा कि वो जापानी पहलवान बन चुके हैं। वो बगैम्बो लगेंगे आपको। तो वो नहीं यानी कि वो कह ले कि जो ये जो यानी है ना, ये एक अनहेल्दी साइन है कि बंदे की उम्र के साथ, बंदे के कद काट के साथ बंदे का वजन बहुत बढ़। अब ये जब तक आपने हेल्थ को कॉन्शियस नहीं रखा, मतलब सिगरेट पीने वाला बंदा, मैं बड़ा एक सादा सा कमेंट करूं, उसने कमेटी डाली हुई है। दुनिया में देखें आज डाटा और स्टैटिस्टिक्स आ चुके हैं कि सिगरेट पीने वालों को ज्यादा बीमारियां, ज्यादा मसाइल पेश आते हैं। अच्छा एक बंदा बड़ा 100 में से एक की केस लेकर आ जाता है, कहते जी देखो इन्हें 100 साल पीता है तो कुछ नहीं होया, होता ना जी। एक पे डाटा नहीं बनता, एक पे रिसर्च नहीं बनती, रिसर्च बनती है दुनिया की मेजोरिटी। यानी कि सेहत एक इतनी जरूरी चीज है, जो इस ट्री को लगाता है वो वर्जिश भी करता है और अच्छी खुराक भी खाता है। अच्छा शाहजी, तारिक बलोच लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, आपसे सवाल है कि जिंदगी के जो फैसले हैं उसमें वक्त क्या अहमियत लगता है, जो कि मैंने अपने एक अफसाने में लिखा है कि जिंदगी ताखीर से बोले जाने वाले सच की तरह झूठी है। बहुत खूबसूरत, ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। अच्छा तारिक साहब मैं ऐड कर दूं कि मैं पहचान गया हूं, तारिक साहब बड़े अच्छे अफसाना निगार हैं और उनकी किताबें भी हैं, ये एक बड़े मारूफ अखबार में लिखते भी हैं। अच्छा तारिक साहब का जो जुमला जो है वो जितना मैं समझ पाया हूं, जिंदगी में
फैसलों को करना और मुनासिब वक्त पे करना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत से लोग जो उनसे है ना वो फैसले करते हैं इतना देर से करते हैं, वक्त गुजर चुका होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उसके बाद माजरत भी करनी पड़ती है उसी फैसले के साथ, वक्त से पहले फैसले कर लेते हैं। इसकी बड़ी एक छोटी सी मिसाल जो उनसी है, बच्चे अभी छोटे छोटे होते हैं, मुनासिब उम्रों में उनके रिश्ते तय कर दिए जाते हैं, यानी फैसले कर दिए गए। अब बच्चों के फैसले हैं जो उनकी शऊरी जिंदगी के बगैर ही फैसले कर दिए गए, कल को गले पड़ते हैं, ताल्लुकात खराब होते हैं, रिश्तेदार खराब होते हैं। तो फैसला करना, मैं वासिफ अली वासिफ का जुमला अगेन कोट करूंगा, फैसला वो घड़ी होती है जिसमें तकदीर अपना काम करती है, और जैसे ही आप फैसला करते हो पूरी की पूरी तकदीर आपकी, मुस्तकबिल आपका बदल जाता है। बिल्कुल ठीक। शाह जी, हसन साहब हैं चिश्तियां से हमारे साथ। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी जी अल्लाह का शुक्र। हसन साहब सवाल है आपका कोई? हाँ जी, सवाल मेरा है कि जिंदगी कामयाब जिंदगी गुजारने के सुनहरी उसूल जो हैं वो आप उन पर रोशनी डालेंगे। हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ये सुनहरी उसूल आज हम बता रहे हैं, आपने रेडी रहना, पूरा प्रोग्राम सुनना है आपने। बिल्कुल ठीक है। और थर्ड, हेल्थ पे आ गया। अच्छा, हेल्थ के लिए एक और टिप मैं दूं कि आपको सेहत को तरजीह में जरूर रखना चाहिए। आपका सुकून, आपकी हेल्थ, आपका आराम, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। आप क्वालिटी जो सी लाइफ है वो जीने के लिए, देखिए मिसाल लीजिए, अरबों रुपया कमा लिया लेकिन सेहत अच्छी नहीं तो किस काम की? किस काम का? आपकी फैमिली जो सी ठीक ठाक है, आप बीमार हो गए तो किस काम के? सेहत के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए। हम जो लापरवाही कर रहे होते हैं, मसलन मिसाल लीजिए कोई अपने ब्लड प्रेशर के हवाले से लापरवाही करता है, ये बीमारी कहीं ना कहीं उसको जो सा वो गले पड़ जाती है। एक जगह पे 100 लोगों का ना इकट्ठा ब्लड प्रेशर चेक किया गया, आप फिजा जान के हैरान हो गए, ये अचानक डाटा लिया गया, 100 में से 2 वो लोग थे जिनको अस्पताल जाना चाहिए था, हॉस्पिटल इस क्रिटिकल हालत में थे, उनको पता नहीं है कि इस ब्लड प्रेशर के साथ जो सा वो अचानक हार्ट अटैक हो सकता है या फॉलो हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। और आसिफा फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद है। जी मैडम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे कासिम अली शाह से बात करनी है। मैं कासिम अली शाह बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि कभी कभी इंसान लाइफ में इतनी ज्यादा धोखे खा बैठता है जिसकी वजह से इंसान इतना ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो फिर कभी कभी इंसान को ऐसा भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आज दूसरी बार हम धोखा खा रहे हैं, यानी दूसरी बार धोखे पे सवाल आ गया। मैडम से पहले भी एक धोखे पे सवाल आ चुका है, धोखे के वाले से और मैं ऐड अप करता हूँ। देखिए जो ये जिंदगी के शुरू के धोखे हैं ना, ये बाज़ औक़ात आपके ज़ाविया नजर को खराब कर देते हैं। मसलन आप कहते हैं शायद सारी जिंदगी अब धोखे ही मिलने हैं, ऐसे ही है। ऐसा नहीं है। इन बुरे लोगों में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, इन गैर एतबारी लोगों में कोई एतबार के काबिल भी होते हैं, इन लालची लोगों, लालची दुनिया में कोई ऐसा बंदा भी होता है जो लालच के बगैर होता है। तो आप अगर लेबल्ड कर दें कि सारी दुनिया ही गलत है, तो अल्लाह की रहमत से आप नाउमीद होगे। हमें धोखे खाने चाहिए, अकल हासिल करनी चाहिए, और उसके बाद कुछ असूल बना के जिंदगी गुजारनी चाहिए। उससे सीखना चाहिए, जो आपको धोखा मिला उससे सीखना चाहिए। अच्छा, हेल्थ के बाद नेक्स्ट 4। अच्छा देखिए, फोर्थ जो सबसे सुनहरी असूल है जो हमसे सवाल भी किया था, ये वही सुनहरी असूल है और जो शाह जी ने हमें बता रहे हैं और हम सीख रहे हैं। मैं तो साथ साथ नोट भी कर रही हूँ शाह जी। अच्छा, जो चौथा जो सा दरख्त है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो दरख्त है, वो दरख्त है पर्सनल डेवलपमेंट का। ठीक। आपको अपने आप को बेहतर जरूर बनाना चाहिए, आपको इल्म नए सीखने चाहिए, आपको स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए, आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको नई किताबें पढ़नी चाहिए, आपको ऐसी मूवीज जिनमें लर्निंग है, ऐसा एक्सपीरियंस या एक्सपोजर वो जरूर लेना चाहिए जो आपको डेवलप करता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ में सपोर्टिव होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बड़े लोग जो उनसे है ना फिजा, उन्होंने ये चौथा दरख्त नहीं लगाया होता। मैं आपको साबित करता हूं कैसे। आप बड़े लोग देखोगे जिनके जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने ये दरख्त नहीं लगाया तो आपको नलायक लगेंगे। गाड़ी बड़ी है, घर बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, पैसा भी बड़ा है, लेकिन अक्ल नहीं है। वो क्यों नहीं है? उन्होंने चौथा दरख्त नहीं लगाया था। शाह जी, रहीम यार खान से वलीद हमारे साथ मौजूद। वलीद साहब अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है और यही से हम जो है स्टार्ट करेंगे कि पर्सनल डेवलपमेंट किस तरह से करनी चाहिए। लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक, और फेसबुक पर आप लाइव देख सकते हैं प्रोग्राम facebook.com/7newstv पर। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है जिंदगी पर। जिंदगी है क्या, जिंदगी गुजारनी कैसी चाहिए, और शाह जी हमें बता रहे हैं जिंदगी गुजारने के सुनहरी असूल। लेकिन शाह जी, इस वक्त माहिर नफ्सियात जहां साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे बात कर ली जाए। मैडम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी।
शाह जी उनसे रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया क्योंकि ब्रेक में हमारे साथ वो मौजूद थी, अब हमारा रब्ता नहीं रहा। अच्छा शाह जी, फोर्थ बात हो रही थी कि पर्सनल जो आपकी डेवलपमेंट है वो किस तरह से करनी चाहिए, जिंदगी गुजारने का चौथा असूल। आप अगर अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो आपको अच्छी सोच भी सोचनी चाहिए। अच्छी सोच के लिए लाजिम है आप अच्छी किताबें पढ़ें, आप अच्छी कोई ट्रेनिंग कोर्स अटेंड करें, आप कोई अच्छे एक्सपोजर के लिए दुनिया को देखें, कोई ट्रैवल करें, कोई नया तजर्बा, कोई मुशाहिदा। फिजा एक छोटा सा ना एक मिसाल ले लो, आप कभी किसी से पूछो ना सुनाओ जी, उसके पास सुनाने के लिए कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। अच्छा, जो काबिल बंदा है ना उसके पास सुनाने के लिए इतना कुछ होगा कि उसको कितनी जिंदगी चाहिए बताने के लिए कि मेरा मुशाहिदा क्या, मेरा एक्सपीरियंस क्या और मैंने क्या कुछ देखा। तो पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपने अपने आप पे काम किया है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया, अपनी आदतों पे काम किया, अपनी सोच पे काम किया, अपने इल्म पे काम किया। तो चौथा दरख्त लगाए बगैर आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। और माहिर नफ्सियात जहां साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैडम ये बताइए, आज लोगों के पास जिंदगी है लेकिन जिंदगी गुजारनी उन्हें नहीं आती, आप क्या राय देंगी? बेसिकली मैं सबसे पहले जो चीज़ बहुत कॉमन है ना वो शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कासिम साहब कि लोगों के पास जिंदगी है, सहूलियत हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी चीज़ों को, अपनी खुशियों को ना रिलेट कर लिए किसी न किसी शर्त के साथ, ना शराइत से खुशियों को वाबस्ता कर लिए। हम लोगों को अगर आप देखें कि आज से 10 साल पहले ही चले जाएं, 15 साल पहले चले जाएं, आप हमारे यूथ का जो टाइम, चाइल्डहुड टाइम था, स्टूडेंट टाइम था, उसमें देखें और आज हमारे बच्चों की लाइफ देखें, तो जो गैजेट्स हैं, तो हमारी हम खुशियाँ ढूंढते हैं अपने हाथों में पकड़े हुए गैजेट्स में, हम खुशियाँ ढूंढते हैं ब्रांड्स में, हम खुशियाँ ढूंढते हैं फूड्स में, और मतलब रिलेट कर लिया हमने खुशी को। मैडम आप क्या समझती हैं, मादी चीजों के साथ खुशी जुड़ी हुई है? बेसिकली देखिए, खुशी जो है ना ये इंसान के अंदर होती है, गम और खुशी ये एक ऐसी चीज है जो कि हमें इस चीज से अवेयर होना चाहिए, दिस इज समथिंग इनसाइड द ह्यूमन बीइंग, और ये अंदर से आती है खुशी। खुशी एक आपको छोटी सी नेकी से भी मिल जाती है, खुशी आपको किसी छोटे से एक्शन से भी मिल जाती है। हम क्योंकि शायद हम भूल गए हैं कि खुशियाँ कैसे हासिल की जाती हैं, खुश कैसे रहा जा सकता है। अब हर तीसरा बंदा मेरे पास आता है, बीइंग अ प्रोफेशनल, जब मैं बैठती हूँ तो वो कहते हैं हम कैसे खुश हो ना। तो मैं ये क्वेश्चन जब मैं सुनती हूँ तो मैं बड़ा हैरान होती हूँ कि हम ये भी भूल गई हैं बेसिकली कि खुश कैसे होना है। ओह सही। और कुछ लोग आते हैं और ये कहते हैं मैडम हम तो हंसना भूल गए हैं, अब बताएं हम हंसें कैसे। खुदा की तो आप ये देखें कि मैडम ये बताइएगा कि ये वो लोग जो गिला शिकवा, रोते जलते कुड़ते रहते हैं बहुत ज्यादा, आपको लगता है कि उनके अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है कि वो किसी ना किसी तरह फिर वो किसी ज़हनी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, उनके गिले शिकवे? देखिए बिल्कुल, हम अपने आप को खुद ज़हनी अजियत में धकेलते हैं ना, ज़हनी अजियत का शिकार हम खुद होते हैं। जब आज मैं ये कहूँगी कि मैं तय कर लूंगी कि जब मेरा ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा मैं सुनूंगी और अगर मैं अच्छा बोली तो मैं खुश होंगी, तो जब तक ये ऑन एयर नहीं होगा और जब तक मैं नहीं सुनूंगी और जब तक मुझे नहीं मेरी 8-10 लाइक्स तारीफें नहीं आएंगी तब तक मैं खुश नहीं होंगी। तो ये मैंने रिलेट कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बड़ी नवाजिश। ऋचा जी बहुत खूबसूरत बात उन्होंने की है कि अवाम आती है हंसना भूल गए हैं, हम लोग आते हैं कि हंसना भूल गए हैं। और लेकिन एक इस सब के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी इनकी बात मेरे जहन में आया सुनते हुए कि जिंदगी आखिर किस मकसद के लिए हमें यहाँ पर भेजा गया, मकसद क्या था जिंदगी, कायनात तख्लीक की गई, सबको पता है, इस्लाम हमारा अकीदा और इस्लाम नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सदके हमें ये जिंदगी मिली है, उन्हीं की तालीमात के मुताबिक हमने जिंदगी गुजारनी है। लेकिन इसके अलावा हटके जिंदगी आखिर किस मकसद का नाम है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। और एक बात बताऊं, ये ऐसा सवाल है कि ये पूरा एक थीसिस है, पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। मुख्तसर ये देखो, आपको लोग मिलेंगे वो कहेंगे जी जिंदगी इबादत के लिए। अच्छा, अब सवाल ये है, इबादत तो फरिश्ते भी कर रहे हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं थी, चल रहा था सदियों से निजाम, इंसान क्यों आ गया उसमें? याद रखो, इंसान की जिंदगी का कमाल ये है, उसे वो इबादतें जो कि फर्ज है उसके अलावा वो इबादत भी ढूंढनी पड़ती है जिसको किए बगैर जिंदगी नामुकम्मल है। यानी अपना मकसद हयात तलाश किए बगैर जिंदगी नहीं है। आप ढूंढते हो कि वो कौन सा काम है जिसको मैं अगर करूंगा तो मेरा अल्लाह राजी होगा। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद दीन कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सवाल है आपका? सर सवाल मेरा ये है सर कि
माशरे का एक अच्छा बंदा कैसा बना जाए सर के लोगों के दिल जीत लिया जाए सर, माशरे का एक अच्छा पर मैं अपने आप को बनाना चाहता हूँ कि लोग खुश रहे, माशरे माँ बाप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। उनका एजेंडा ये है, सवाल ये है कि एक अच्छा फर्द कैसे बना जाए, तो उसके लिए 7 दरख्त जरूर लगाएं। उनमें से हम जो उनसे वो तकरीबन 4 दरख्त पूरे हो चुके हैं, लगा चुके हैं। 5वां दरख्त अब क्या? अच्छा देखिए, 5वां जो दरख्त है ना, वो है सर्विस का, खिदमत का। खिदमत। अगर आप इस जिंदगी में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं और आपने खिदमत नहीं की, आपने सर्व नहीं किया, तो आपने फिर ये दरख्त नहीं लगाया। सर खिदमत कैसी? माँ बाप की, वालिदैन की, या रिश्तेदारों की, या अपनी खुद की, या अल्लाह की? एक खिदमत तो वो है जो हम पे फर्ज है, यानी वालिदैन की, बाकी एक खिदमत का मतलब है कि आपने सोसाइटी को कुछ दिया। आप जिए, आप जिंदगी में रहे, लेकिन जिंदा रह के आप कुछ दे के भी दुनिया को गए। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक फिलॉसफी है पूरी। पहला एक वक्त होता है कमाने का, एक लगाने का वक्त भी होता है। तो आपने अगर खिदमत ना की तो आपने कुछ नहीं किया। बिल गेट्स जैसा बंदा भी दुनिया का अमीर तरीन इंसान होने के बाद सारी दौलत जो उनसी चैरिटी पे लगा देता है। यानी चैरिटी बांटना एक ऐसी चीज है जो कमाने से ज्यादा लुत्फ देती है। लोगों ने बांटने का मजा ही नहीं लिया होता। जब आप बांटते हैं ना तो फिर आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और खालिद साहब हैं कराची से हमारे साथ। जी खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, कोई सवाल है आपका? जी मेरा शाह साहब आपसे सवाल था कि आजकल हमारे माशरे में ये इखलाकी कदरें क्यों कम होती जा रही हैं? कोई बड़ा हो या छोटा हो, एक दूसरे के अदब और लिहाज जो है वो बहुत शुक्रिया जी खालिद साहब, बड़ी नवाजी। खालिद साहब का एक बड़ा सॉलिड सवाल है कि इस माशरे में इखलाकी कदरें कम क्यों हो रही हैं। खालिद साहब, गुजारिश ये है कि इस माशरे में तालीम के निज़ाम का जनाजा निकल गया। इस माशरे में तालीम जो उनसी है, फर्ज कीजिए इखलाकियात पे भी कोई डिग्री अगर हो तो जो डिग्री लेने वाला उसमें भी इखलाकियात नहीं होती, क्योंकि हमने तालीम को रट्टे का सिस्टम दे दिया। हमने नंबरों, डिग्री और जीपीए की रेस में लगा दिया पूरी कौम को। सो नतीजा क्या है? ग्रेजुएशन तक इस्लामियात पढ़ने वाला, देखो आपके आइन का हिस्सा है कि ग्रेजुएशन तक बच्चे को मुताला पाकिस्तान और इस्लामियत पढ़नी है। इस्लामियात 14 साल तक पढ़ने वाला इस्लाम से दूर होता है। सर इस्लाम सारा एक ही बात पे आता है कि शादियां 4 ही करनी है। अब ये तो खुदा की पनाह है कि यानी बाकी वो कदरें, तमाम की तमाम कदरें जो हमें सीखनी चाहिए, सिखानी चाहिए, उसको भी हमने नंबर देने पे लगा दिया। इस्लामिक में नंबर लो, एडमिशन हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस कराची से हमारे साथ मौजूद है। यूनुस साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा सवाल है कि सर। वालेकुम सलाम। हेलो सर, मैं कह रहा हूँ कि ये इखलाकी कदरें कम तो हो रही है, मगर इसको बढ़ाई कैसे जाए? बढ़ाने में भी तो हम सब माशरे को जो है ना। बहुत शुक्रिया आपका। ये उसी सवाल की कंटिन्यूटी है कि आप एजुकेशन सिस्टम पे काम कीजिए। अगर आप इन इखलाकी कदरों को वैल्यू देंगे, यूनुस साहब या कोई भी शख्स या मैं ही, अगर हम कदर कम से कम इनको इंपॉर्टेंट समझेंगे तो कम से कम हमारी नस्लों में तो वो कदरें पाई जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। अपने घर से आगाज करें। जिनके जहन में एटलीस्ट ये सवाल भी आता है कि इखलाकी कदरें क्या हैं और क्यों कम हो गई है, तो यकीनन ये भी एक फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने घर से शुरू करें। अच्छा शाह जी, खिदमत की बात है। अब खिदमत का मतलब क्या? खिदमत का मतलब है अल्लाह ने जो आपको दिया हुआ उसको बांटो। शफाक साहब कहा करते थे, दिते विचों देना पैंदा, जो है उसी को तो देना है। जो सरमायादार है ना, उसे हिसाब सरमाए का होना है, उसे सरमाया बांटना चाहिए। इल्म वाले पे लाजिम है अपना इल्म बांटे, फहम वाले पे लाजिम है फहम बांटे। और एक बड़ा अच्छी कोटेशन कोट की जाती है कि अगर रास्ता आपको पता है तो जो रास्ते से आगाह नहीं है वो आपकी जिम्मेदारी में शामिल हो गया। इखलाकियात कहती है कि उसको रास्ता फिर जरूर बताएं। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद उस्मान हारूनाबाद से हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर मेरा सवाल ये है कि सर इफ वी कैन सर, जो सेटिस्फेक्शन है सर, सेटिस्फेक्शन इज अ सक्सेस और नॉट? बहुत सादा सा सवाल था कि सेटिस्फेक्शन जो उनसी है वो कितनी जरूरी है। देखिए मैंने इसमें एक अहम चैप्टर हेल्थ का डाला। यकीनन उसमें सुकून कल्ब, इत्मीनान, आपकी जात, आपकी आजाद का जो सुकून है वो बड़ा जरूरी है। तो वो अगर नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आपकी सक्सेस किसी काम की नहीं है। जिंदगी में इत्मीनान का होना बड़ा जरूरी है। और अगर इत्मीनान है, ये भी आप वो हेल्थ वाले चैप्टर में डाल देंगे और अपनी जात वाले चैप्टर में डाल देंगे कि आपको कंटेंटमेंट भी सीखनी है, साबर शाकर होना भी सीखना है। अगर आप साबर शाकर नहीं है और लालच से भरे हुए हैं तो फिर आपके पास कुछ भी आ जाएगा
सर वो कितना ही कह लेना चाहिए कि वो बदनसीब शख्स है जिसके पास करोड़ों है लेकिन सुकून से सो नहीं सकता, और जो जमीन पर सोता है वो सुकून से सोता है। बिल्कुल ठीक है। आगे अच्छी खिदमत के बाद सर छठा पॉइंट क्या होगा? सुनहरी असूल छठवां। छठा जो है ना वो है आपकी स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। हम रूह वाली मखलूक हैं, हम सिर्फ जिस्म नहीं है। जब हम अपनी रूह और सुकून कल्ब और बिलखसूस अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक, अल्लाह की रजा को इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो ये दरख्त जो सा ये भी हमें फल देता है, ये ईमान का फल देता है, ये ईमान की छांव देता है। इस दरख्त को भी जरूर लगाना चाहिए। रिलीजन जो है वो हमारा छठा जिंदगी गुजारने का सुनहरी असूल है। और इस वक्त गुलाम मुस्तफा गुजरावाला से हमारे साथ मौजूद है। जी गुलाम मुस्तफा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुलाम मुस्तफा एडवोकेट गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। जी सर, कोई सवाल है आपका? जी समाजी रवैये के बारे में आपका क्या कहना है? समाजी रवैया हमारे फैमिली सिस्टम हमारा टूट गया है। बहन भाई जो है कि एक बंदा कमा रहा है या एक सपोर्टिव है, दूसरे जब वो अपना टॉप लेवल गेन कर लेते हैं तो उस बंदे को डिजर्व नहीं, जो वो कर रहा होता है उसे नहीं दिया जाता। ठीक, बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफा, हमने आपका क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनका सवाल ये कि समाजी रवैये हमारे अब नॉर्मल हो गए हैं, उसमें बेहतरी नजर नहीं आती। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमने अपने जो हकूक हम पे लाजिम है, जो फर्ज हम पे चीजें हैं, हमने उनको इग्नोर किया। हमने वो इंपॉर्टेंट चीजों को जो सा वो हक मारना शुरू कर दिया और इस पे बात करने वाले बड़े कम हैं। मैं कहता हूँ देखो, अगर वाकई ही आम मामलात में और समाजी रवैयों में अगर जस्टिस है तो अदालतों पे लोड नहीं पड़ेगा, वकीलों पे भी, एडवोकेट थे, इन पे लोड नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि लोगों के रवैयों में, लोगों के मामलात में खुद जस्टिस नहीं है, तो फिर अदालतों का रुख करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। और सातवां जो जिंदगी गुजारने का सुनहरी असूल है वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और फेसबुक पर आप लाइव देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम facebook.com/7newstv पर। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू में एक मरतबा फिर से हाजिर है। बात हो रही है जिंदगी गुजारने के सुनहरी असूलों पर, और 7 असूल टोटल आपने बताए हैं कि 7 दरख्त लगाने चाहिए। 6 हो चुके हैं, अब आखिरी है 7वां रह गया। अच्छा देखिए, 7वां जो दरख्त है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर मैं अपने नाजरीन को जो उन्होंने अभी अभी ट्यून किया है बताते चलूं कि पहला दरख्त करियर, दूसरा दरख्त आपने बताया कि फैमिली के रिश्तों को समझना है, तीसरा आपने बताया कि हेल्थ, अपनी सेहत पर भी पूरी तवज्जो दें, और पर्सनल डेवलपमेंट के इंसान के अंदर ऐसी कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कि इंसान को सीखनी चाहिए, और खिदमत, सबकी खिदमत करो क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर पैदा किया है इंसान बनाने का मकसद ही है। और छठा था आपने रिलीजन बताया। अब लास्ट वन क्या है? अच्छा देखिए, लास्ट वन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट जो सा वो है, इसलिए मैं उसको इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि हम उसको भी नजरअंदाज करते हैं। देखिए, हमें अपनी आइडेंटिटी और क्रेडिबिलिटी को बड़ा इंपॉर्टेंट समझना चाहिए। लोग पैसे कमाते हैं, लोग इज्जत नहीं कमाते। जब आपने इज्जत नहीं कमाई होती तो बड़े पैसे के बावजूद भी लोग आपको थू थू कर रहे होते हैं। सर ऐसे ये हमारे माशरे में यही अलमिया बन गया, जिसके पास पैसा है सिर्फ उसी की इज्जत है। ये भी एक मिथ है। हकीकत ये है कि पैसे वाले की इज्जत नहीं, इज्जत वाले की इज्जत है। वो पैसे वाले का डंडा होता है, वो डंडे की वजह से लोग डर रहे होते हैं और उस लालच की वजह से उसकी इज्जत कर रहे होते हैं, लेकिन इज्जतदार की इज्जत होती है। याद रखिए, हमें इस दरख्त का, अच्छा इसका मतलब क्या है, ये भी छोटा सा समझा। अच्छा सर, आमिर इकबाल लाहौर से हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे बात करिए। जी आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपकी? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा शुक्र। आपका कोई सवाल है? हाँ जी साहब, अभी आपने एक बात कही थी कि एजुकेशन जो सिस्टम है वो हमारे समाजी ज़रूरियात को बेहतर कर सकता है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली वो जिस तरह डिज़ाइन किया गया है वो इंसानों को गधा बना रहा है, जानवर बना रहा है, इंसान नहीं बना रहा। तो कोई सवाल है आपका सर? कोई सवाल है सर? एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये मेरा एक बर्निंग क्वेश्चन है मेरे ज़हन में, क्योंकि बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा फिजा, इस पे क्योंकि हम पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं और हम अपने सुनने वालों को ये भी बताते चलें कि वो प्रोग्राम हमारे इंटरनेट पे मौजूद होते हैं। आप अगर कल का पूरा प्रोग्राम सुनते हैं, वो है ही इल्म पे। इल्म है क्या, तालीम का निजाम कैसे बेहतर किया जा सकता है, यानी हमने घंटा लगा के पूरा थीसिस खड़ा किया है कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। जैसे 7वां असूल पहचान, अच्छी खूबियां। अच्छा देखो, क्रेडिबिलिटी या अच्छा होना और अच्छी पहचान होना, इसका मतलब ये है कि आप जिंदगी में कोई भी कदम उठाने लगे ना, तो कदम उठाते देखिए ये कदम मुझे किस तरफ लेके जाएगा। एंड क्या है इसका? अच्छा, इसका एंड क्या है? होता क्या है कि बहुत से लोग कदम ऐसा उठा लेते हैं कि उनकी शोहरत खराब हो जाती है, उनका नाम खराब हो जाता है। मेरा मानना ये है कि जिस बंदे की प्रोफेशनल शोहरत अच्छी नहीं है ना, वो जिंदगी में बड़े मौके गवा देगा और वो आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी
یہ بھی ایک بینک اکاؤنٹ کی طرح، جیسے بینک سے پیسے نکلوا لیتے ہیں نا، کریڈیبلٹی بھی آپ کی پڑی ہوتی ہے اور آپ کو کئی کئی مواقع کئی چیزیں آپ تک چل کے آ رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ذکا اللہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ذکا اللہ صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شاہ صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ کا بڑا شکر۔ کوئی سوال ہے سر آپ کا؟ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ ایک ان پڑھ بندے کے ساتھ بندہ زندگی کس طرح گزار سکتا ہے جبکہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ ذکا اللہ صاحب کے سوال میں ایک درد تھا جس کو میں نے محسوس کر لیا، فضا آپ نے تو محسوس نہیں کیا۔ اچھا اب یہ سوال ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یاد رکھیں، نہ کوئی ایجوکیٹڈ ان پڑھ ہوتا ہے، نہ کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ بات ہوتی ہے عادتوں کی، بات ہوتی ہے اسلوب کی، بات ہوتی ہے تہذیب کی۔ ذکا اللہ صاحب کو میں بتاتا چلوں، بڑے بڑے پی ایچ ڈی جاہل موجود ہیں، بڑے بڑے ایم فل جاہل موجود ہیں، بڑے بڑے ماسٹرز ایم ایس سی کی ہوئی ہے جاہل موجود ہیں، اور بڑے بڑے چٹے ان پڑھ لوگ ہیں لیکن تہذیب یافتہ ہیں۔ اگر آپ کا یارڈ سٹک، اگر آپ کا میئرمنٹ کا ٹول یہ ہے کہ کوئی کتنا تہذیب یافتہ ہے تو اس میں ایجوکیشن میٹر نہیں کرتی۔ اب ذکا اللہ صاحب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے یا تہذیب یافتہ نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا اس میں تہذیب کی طرف جانے کا رجحان کتنا ہے۔ بعض میں اڈاپٹیبلٹی نہیں ہوتی، وہ اچھی چیزوں کو کیچ نہیں کرتے، وہ اچھی چیزوں کو اپناتے نہیں ہیں۔ تو پھر سر ان کے لیے مشورہ یہ نہیں ہے کہ ذکا اللہ صاحب خود سکھا دیں؟ اس کا بڑا آسان سا حل ہے، ریلیشن شپ میں بالخصوص ہسبینڈ یا فادر ٹیچر کا رول بھی پلے کر سکتا ہے۔ وہ ساتھ ہی ساتھ میں اگر تھوڑی سی ہمت کرے، زحمت کرے اور اپنے لائف پارٹنر کو، اپنے ساتھ والے ساتھیوں کو سکھائے محبت سے۔ ہم ڈانٹ کے سکھاتے ہیں، طنز کر کے اور اچکلے لگاتے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے، وہ بیچارہ شریف بندہ اور دب جاتا ہے، سیکھتا نہیں ہے۔ سکھانے کے لیے محبت لازم ہے، ایک ادب لازم ہے، ایک درمیان میں ایک برج چاہیے کہ یار میں تمہیں سکھاتا ہوں، لیکن سکھن والے دے مزاج نو بڑھاؤ نا۔ دیکھو لوہا ہے نا، اس کو کہتے ہیں اگر مولڈ کرنا ہو نا، ہتھوڑے مارے جائیں ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر ایک خاص حالت میں گرم کر کے مولڈ کیا جائے تو مولڈ ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اس حالت میں نہیں رہتے جس میں سکھایا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، شہباز لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شہباز صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر میں ایک آپ سے بہت ضروری اور آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ کی چیزیں، ہلو جی میں سن رہا ہوں سر۔ سر میں آپ سے ایک ضروری بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے اندر ایک خوف ہے، ڈپریشن ہے۔ میں جب آپ کی باتیں سنتا تو مجھے حوصلہ آتا، تھوڑا سا بہت حوصلہ آتا آپ کی باتیں سن کے۔ مجھے ایسے لگتا ہے میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، میں گرنا چاہوں، میں مرنا چاہوں، جب آپ کی آواز اور آپ کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا نا پرسنل میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں، اور مجھے ٹھیک ہے شہباز صاحب، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شہباز صاحب۔ دیکھیں آج کے دور میں ملاقات ہوگی بڑی آسان، کیسے؟ آپ جس کی باتیں سنتے ہیں، جس کا پروگرام سنتے ہیں، جس کے لیکچر سنتے ہیں، ملاقات تو آپ کی روز ہوتی ہے۔ یعنی میں حیران ہوں، مجھے جب فیڈ بیک آتی ہے کہ رات کے کسی پچھلے پہر دنیا کے کسی ملک میں کوئی ویڈیو لیکچر لگا کے سن رہا ہے یا ہمارا پروگرام ریپیٹ سن رہا ہے، تو میں کہتا ہوں ملاقات تو پوری ہوگی، میں سو رہا ہوتا ہوں لیکن وہ ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آج کے دور میں افکار کو جاننا بڑا آسان ہو گیا۔ باقی میں ایک بات انہیں کہہ دوں کہ جس کے پاس خوف خدا ہے اور اللہ کا توکل ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، بالکل کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ سر آخری اصول پر بات ہو رہی تھی، 7واں زندگی گزارنے کا اصول۔ اچھا دیکھیں، کریڈیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عزت کو کمایا ہے، آپ نے تنخواہ کو تو کمایا، آپ نے عزت کو بھی کمایا، آپ نے اپنی رسپیکٹ کو موسٹ امپورٹنٹ سمجھا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی سیلف رسپیکٹ وہ بالکل اور ڈومین ہو جائے گی، ادھر جانا اس وقت مناسب۔ ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال، بعض لوگ نا وہ کسی بھی حالت میں اپنی عزت پہ کمپرومائز کر کے بنا کما لیتے ہیں بس۔ اچھا گڈ لک ہی ہوتی ہے، آپ نے اپنی رسپیکٹ کو، اپنی کریڈیبلٹی کو امپورٹنٹ سمجھا ہے، آپ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے میں اپنی رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، کمانا چھوٹا، عزت پہلے۔ بالکل ٹھیک ہے، ثنا فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی میری بہن السلام علیکم۔ جی بہن السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ثنا آپ کا کوئی سوال ہے؟ سوال نہیں ہے سر، بس میں کچھ بتانا چاہوں گی۔ ابھی ایک بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ کوئی بھی ان کا پارٹنر ہے جو ان پڑھ ہے۔ جی جی میں یہی بتانا چاہوں گی، میرے بھی ہسبینڈ تھے ان پڑھ تھے، یعنی کہ انہیں بہت فیل ہوتا تھا کہ میں ان پڑھ ہوں، کوئی آگے کام نہیں کر سکتا، لیکن ٹھیک ہے میں پڑھی لکھی تھی لیکن ہم نے ان کو آگے لے کے چلے۔
अब माशाल्लाह वो खुद ठीक है सना, ठीक है सना, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो वो सेकंड ही कर रहे थे उस बात को। बिल्कुल अच्छा, बात हो रही थी क्रेडिबिलिटी की। अब क्रेडिबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसको हमेशा कायम दायम रखना चाहिए। आपको अपनी रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, आपको अपनी सेल्फ स्टीम पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, आपको अपनी वैल्यूज, अच्छी वैल्यूज पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपके अगर अच्छे असूल हैं, कंप्रोमाइज ना करें। वो लोग जो रिस्पेक्ट को अपनी टॉप प्रायोरिटी लेकर चलते हैं या अपनी प्रायोरिटी में लेकर चलते हैं, याद रखो पैसे तो वो कमा ही लेते हैं लेकिन इज्जत ज्यादा कमाते हैं। इज्जत ज्यादा कमाते हैं। ये थे जिंदगी गुजारने के हमारे 7 असूल। लेकिन सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन 7 असूलों के मुताबिक जिंदगी तो गुजारनी चाहिए, लेकिन ये जो 7 दरख्त आपने लगाए हैं, इनको पानी किस तरह से दिया जाए, इनको खाद कौन सी दी जाए कि ये 7 दरख्त जो हैं वो साया भी दे हमें और फल भी दे? देखिए, सबसे पहली बात तो इनको बोना है, यानी इनको इंपॉर्टेंट समझना है। हाँ। आपकी जिंदगी की 7 प्रायोरिटीज को मैंने ले ली है। ये 7 प्रायोरिटीज के बगैर अच्छी जिंदगी नहीं गुजर सकती। तो सबसे पहला काम तो करें, इन्हें प्रायोरिटाइज करें, फिर इन्हें तवज्जो दें। अगर इसमें से कुछ मिसिंग था तो आज से उस तरफ ध्यान दें। शाह जी, लाहौर से राबिया हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह मैं का आपका बड़ा ज्यादा शुक्र। टाइम नहीं लूंगी, मैं जस्ट आपसे इतनी बात कहूंगी, प्लीज मुझे इतना बता दे कि अच्छी जिंदगी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, नो डाउट मैंने आपके बहुत लेक्चर सुने हैं, लेकिन म्यारी जिंदगी जिसकी आप बात कर रहे हो, औलाद को अच्छा किस तरह बनाया जाए? बहुत अच्छा सवाल है, मेरी बहन का सवाल बहुत अच्छा है जी। याद रखें, अच्छी औलाद बनाने के लिए अच्छे वालिदैन बन जाएं, क्योंकि बच्चों ने जो देखना है वैसा ही बनना है। ये हो नहीं सकता कि अमरूद का दरख्त हो और उस पे जो फल लगे वो आम का हो। ये हो नहीं सकता कि दरख्त आम का हो और उस पे जो फल लगे वो सेब का हो। औलाद सबसे ज्यादा असर वालिदैन का लेती है। अगर वालिदैन में कैरेक्टर होता है, वालिदैन में इल्म दोस्ती, वालिदैन में दीन से मोहब्बत होती है, ये बच्चों में खुद ब खुद पैदा हो जाती है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और थम्स अप का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक करें।